currently serves as the gender co-lead for Solidariad Network globally and has led transformative work across 40 countries, integrating gender into both agriculture and industrial sectors. Her pioneering concept of the feminization of supply chains has enabled over 1 lakh women to enter formal, sustainable, and climate resilient supply chains. Also, with her deep expertise in the ESG linked themes such as ethical supply chains, climate resilience, equity, and responsible business practices, she brings a powerful ground level understanding of how sustainability includes people and not just policies. I would request everyone to join me in welcoming Ms. Neha Ma'am to lead us into a meaningful conversation on ESG and its human impact. I would now request Ma'am to proceed with this session. Thank you so much for joining us today. Thank you, Anuprabha, for such a nice introduction. And also, I am really pleased to be on this platform, which has such a genuine and good, uh, you know, motive, and which really resonates with what I feel and how I look at the society and how I would want the society to move forward. Thank you so much, Rahul, for giving me this opportunity. It's such a pleasure to see you here in the call. And just one request, Anuprabha, I would want you to, if you could just switch on the recording so that we could also refer to this call later on if need be. Yes. Yes, ma'am. We are on it. All right, thank you so much. And the second thing is that I would go into a presentation mode, but please feel free if somebody wants to, ask something, or somebody wants to know something more than what is being presented or what we are talking right now. My idea was that let me just introduce ESG, which is an upcoming concept, especially if we talk about the climate agenda and so much of discussions and um, talks happening over climate. One last question, maybe I would want to know what language would be more. I just know two, Hindi and English. So in Hindi and English, which is a more comfortable language? आप मिक्स कर सकते हैं हिंदी इंग्लिश बोथ ठीक है. तो Okay. या सो आइडिया ये है कि आई एम नॉट श्योर कि कितने लोग ऑलरेडी आ, एक्सपोज्ड हैं ईएसजी से. मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादातर रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, बिल्कुल, तो हिंदी मतलब जैसे भी ज्यादा हिंदी हिंदी इंग्लिश प्रेफर्ड है. जैसे भी हो उनको अंडरस्टैंडेबल हो वैसी लैंग्वेज उनकी होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं कोशिश करूंगी हिंदी में ही रखने का ज्यादातर. और कहीं पे कुछ कंफ्यूजन हो तो प्लीज आराम से पूछ सकते हैं. अब मैं उसको थोड़ा और इजी करके बताने की कोशिश करूंगी. तो आइडिया ये था कि हमने डिस्कस किया कि जैसे कि सारे स्टूडेंट्स हैं और मोस्टली तैयारी कर रहे हैं किसी ना किसी चीज की. तो इस टाइम पे जबकि ईएसजी के ऊपर इतना डिस्कशंस चल रहा है, इतने सारे नए मुद्दे आ रहे हैं, इतनी सारी नई बातें चल रही हैं, तो एक छोटा सा एक्सपोजर, एक छोटा सा सेंसिटाइजेशन अच्छा रहेगा, सो दैट इट गिव्स यू अ मोर वाइडर पर्सपेक्टिव कि हम आगे चल के और क्या क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास. तो इस सोच से मैं इस सेशन को संबोधित कर रही हूँ. अभी देखते हैं इसमें, फिर अगर आप लोग को कुछ भी पूछना हो, और मेरा काम भी मोस्टली रूरल एरिया में ही है, तो मैं रूरल एरिया से काफी कॉन्टेक्स्ट है मेरा, तो आप आराम से अपने हिसाब से आपको जो सही लगता है वहां के हिसाब से वो भी पूछ सकते हैं. लेट मी जस्ट गिव एक सेकंड दीजिए, केवल मैं बस प्रेजेंटेशन अपना ऑन कर लूं. ओके. अभी क्योंकि मुझे कोई दिख नहीं रहे हैं, तो किसी को कुछ पूछना होगा ना तो प्लीज अनम्यूट करके अपने आप पूछ लीजिएगा, क्योंकि मैं देख नहीं पाऊंगी अगर आप हाथ भी उठाए होंगे तो. Yes, yes. राइट. सो सेशन का नाम रखा है ईएसजी मेड इजी, क्योंकि ये इतने कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स इसके आसपास होते हैं कि एक बार को पढ़ने में बैठो तो दिमाग ब्लॉक हो जाता है कि आखिर ये चीज क्या है.
So the session, that's why is named ESG Made Easy for Everyone. अभी कुछ भी समझने से पहले, जानने से पहले, आखिर ये शुरू क्यों हुआ, क्या है, क्यों कर रहे हैं, इसके ऊपर थोड़ा देख लेते हैं कि इसकी हिस्ट्री क्या रही है. सो बेसिकली बिजनेस तो बहुत सालों से है, बहुत मतलब फ्रॉम एवर है, कुछ किसी भी रूप में. तो आखिर ऐसी जरूरत क्या पड़ गई कि ESG या CSR ये सब दुनिया में आ गए. सो बेसिकली हुआ ये कि जब इन्वेस्टर्स आए, जो इन्वेस्टमेंट लेके आए, मतलब पैसा बिजनेस को दिए अलग से काम करने के लिए, तब उन्होंने बोला कि हम कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जिसको सिन सेक्टर्स बोलते हैं, जैसे कि टबेको हो गया या वेपन्स हो गया या साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड रिलेटेड जो भी वहां पे इश्यूज थे उससे रिलेटेड जो बिजनेस थे, हम इनको पैसे नहीं देंगे क्योंकि ये हमारे एथिक्स और हमारे मॉरल वैल्यूज के खिलाफ है. तो ये पहली बार हुआ कि मॉरल वैल्यूज और एथिक्स की बात हुई बिजनेस में, और इन्वेस्टर्स ने बोला हम इनको पैसे नहीं देंगे. तो वहां से ये कॉन्सेप्ट शुरू हुआ कि एथिकल एंड सोशल रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टिंग करेंगे हम. तो एक बार जब ये कॉन्वर्सेशन शुरू हुआ तो फिर बाकी इन्वेस्टर्स भी ये सोचे कि जब ये इस तरह से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हम भी क्यों गलत चीजों के लिए पैसे दें. तो वहां से ये बातें शुरू हुई. तो 1960s और 80s में ये एथिकल एंड सोशल रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टिंग था. उसके बाद हुआ कि इसको अगर हमें अच्छी तरह से इनग्रेन करना है, अगर सिस्टम्स में लेके आना है, क्योंकि ऐसे तो कोई करेगा कोई नहीं करेगा, मर्जी पे है. तो 1990s में कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आई, जो अभी हम लोग बहुत सुनते हैं कि CSR इंडिया में भी बहुत ज्यादा कंपनीज कर रही हैं, क्योंकि ऑब्वियसली कंपलसरी किया गया है 2% प्रॉफिट हर कंपनी को, जो भी कंपनी एक सर्टेन लिमिट से ऊपर कमाती है उनको अपना 2% CSR में देना पड़ता है. तो ये CSR की बातें शुरू हुई 1990s से, जो कि एथिकल एंड सोशल रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टिंग का एक लेवल ऊपर बढ़ा कि कंपनीज CSR पॉलिसीज अडॉप्ट करने लगी, ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे CSR की बातें होने लगी. बहुत सारे ऐसे इन्वायरमेंटल डिजास्टर जो कि मैं आगे दिखाऊंगी, 2-3 ऐसे क्या हुए जिनके कारण लोगों ने फिर बात की कि हम CSR करना चाहते हैं. फिर उसके साथ आया सप्लाई चेन की मॉनिटरिंग. तो सप्लाई चेन कहते हैं एक कंपनी का, अगर हम मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर हम कोका कोला की बात करते हैं, तो जैसे जहां से वो गन्ना सोर्स करते हैं, वो किसान से लेकर के उनका जो कंपनी है वहां तक का पूरा जो सिस्टम है उसको सप्लाई चेन कहते हैं. और जब सस्टेनेबिलिटी की बात चलती है तो उनकी कंपनी का जो ऑफिस है वहां से लेके उस गन्ना उगाने वाले किसान तक सारा ट्रेस किया जाता है. तो वो सारा सिस्टम सही होना चाहिए. इसके लिए बहुत सारे अलग अलग लेवल पे रिपोर्टिंग शुरू हुई, उसका अलग अलग मॉनिटरिंग शुरू हुआ, जिसमें GRI जो अभी सबसे ज्यादा फेमस है और UN ग्लोबल कॉम्पैक्ट, ये दोनों आज के दिन सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल इंडिकेटर्स मतलब फ्रेमवर्क्स हैं. तो ये आए हमारे 1997-99 में. 2000-2005 के आसपास ESG टर्म का फाइनल एंट्री हुआ. लाइक just give me just a second. Sorry. हाँ, तो 2000-2005 के बीच में ESG की बात आई, जो कि UN में कोफी अन्नान जो सेक्रेटरी जनरल थे UN के, उन्होंने एक रिपोर्ट से को साइट करते हुए, हु केयर्स विन करके एक रिपोर्ट है, उसको साइट करते हुए इस टर्म को यूज किया. सो इस तरह से एथिकल सोशल रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टिंग से CSR से ESG आया. सो बेसिकली शुरुआत जो हुई थी वो इन्वेस्टिंग से शुरू हुई थी. अभी जाकर के ये ओवरऑल हर जगह पे कैसे हम एक रिस्पॉन्सिबल वे में बिजनेस कर सकते हैं उस पे बात कर रहे हैं. ये है हमारा हिस्ट्री कि कैसे आया. पर अगर हिस्ट्री को देखें तो ज्यादा पुराना है नहीं. अगर हम देखें कि ESG कब आया इस दुनिया में, तो वो बहुत पुराना नहीं है. 2005 is hardly some years away from here. अगर हम ESG टर्म बहुत देर से यूज कर रहे हैं, ESG में E जो है वो एनवायरनमेंट के लिए है. तो बिजनेस रिलाय ऑन नेचुरल रिसोर्सेज. कोई भी बिजनेस करने के लिए उनको नेचुरल रिसोर्सेज, बहुत सारे एसेट्स, बहुत सारा ऐसी चीजें जो हमें एनवायरनमेंट से मिलती है वो
वो यूज होता है, पानी हो गया, हवा हो गया, कोल हो गया, तो ये सब जो है वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करता है। तो क्लाइमेट चेंज, कार्बन, रिसोर्स, पोल्यूशन, एनर्जी, लैंड, बायोडाइवर्सिटी का लॉस, वाटर का कंजम्पशन, वेस्ट का मैनेजमेंट, ये सारे जो एरियाज है ना वो इन्वायरमेंट के अंदर में आते हैं अगर हम ईएसजी की बात करें तो। सेकंड होता है हमारा सोशल। सोशल अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने लग गया है क्योंकि लोगों ने इसको ट्रैक करना शुरू कर दिया है। पहले क्या था कि जो भी कंपनीज है, बहुत सारी कंपनीज ह्यूमन रिसोर्स को बिल्कुल रिसोर्स की तरह यूज करती थी। बहुत सारे ऐसी जैसे चाइल्ड लेबर हो गया या स्लेवरी हो गया, ये सब बहुत ही ज्यादा था। अभी क्या है, ट्रैक करना शुरू हुआ है और कंज्यूमर्स आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट। उनको नहीं चाहिए कि हम खराब तरह से बना हुआ सामान खरीदे। तो इसीलिए इसको लेकर के आजकल बहुत ही ज्यादा कैंपेन्स चल रहे हैं, बहुत सारी बातें चल रही हैं। इसमें क्या क्या आता है, तो जॉब क्रिएशन, वर्किंग कंडीशन, इक्वल अपॉर्चुनिटी, डाइवर्सिटी, ट्रेनिंग, लोगों की ट्रेनिंग, वर्कर्स की ट्रेनिंग, लोकल कम्युनिटी का क्या इम्पैक्ट है, हेल्थ एंड सेफ्टी, चाइल्ड लेबर, ग्रीवेंस मैकेनिज्म है या नहीं, ह्यूमन राइट्स के ऊपर बात होती है, सोशल इम्पैक्ट की बात होती है, जेंडर बेस्ड वायलेंस, हरासमेंट, ये सब मुद्दों की जहां बात होती है उसको हम सोशल में रखते हैं। तो ई हो गया इन्वायरमेंट, एस हो गया सोशल, थर्ड हो गया गवर्नेंस। इसमें हम कंपनी की गवर्नेंस की बात करते हैं कि कोई भी कंपनी जो है वो उसका गवर्नेंस कैसा है, उसका पर्पस क्या है, उसका वैल्यू क्या है, उस कंपनी में कल्चर क्या है, बोर्ड में क्या महिलाएं हैं या डाइवर्स बोर्ड है, फिर उसका सक्सेशन प्लानिंग है, पेमेंट कैसा है, इंटरनल कंट्रोल मैकेनिज्म्स है या नहीं है, कि कहीं फ्रॉड हुआ तो वो पकड़ सकते हैं नहीं पकड़ सकते, वो इंटरनल कंट्रोल्स है या नहीं है, रिस्क कैसा उसके साथ है, एथिक्स में उनका क्या से है। तो ये सारा जो है ना, ये सारा गवर्नेंस, एक कंपनी के कोर गवर्नेंस का इश्यूज है, वो हमारे गवर्नेंस में आता है। सो बेसिकली 3 जो पिलर है वो ESG, एनवायरनमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस। ठीक है, यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है, कोई क्लैरिटी चाहिए? ओके, ये 3 बहुत ही फेमस केसेस हैं। ठीक है, कि जब कुछ ऐसे केसेस हुए थे उससे कंपनी को कितना फर्क पड़ा। क्योंकि बहुत बार क्या होता है ना, लोग ऐसे सोचते हैं कि अरे ये तो मतलब ये तो सोशल वर्क है, ये हमारा काम थोड़ी ना, और कंपनी तो सोशल वर्क के लिए आती नहीं है। सोशल वर्क तो हम जैसे लोगों का होता है जो एनजीओ में काम करते हैं। तो बहुत बार ऐसे ये कंपनी का सोच रहता है, पर ये जो फ्रेमवर्क है और इसकी जो बातचीत चल रही है, डिस्कशंस चल रहे हैं, उनका कहना है कि ये कंपनीज ने अगर नहीं किया तो वो पूरी की पूरी कंपनी बंद हो सकती है। तो इसका एक केस था एनवायरमेंटल मिसमैनेजमेंट का, जब बीपी पेट्रोलियम जो है 53.8 बिलियन प्री टैक्स चार्ज उसको लगा था जब उसने डीप वाटर होराइजन ऑयल स्पिल्स हुआ था उसका। तो उन्होंने उतना ध्यान नहीं रखा था कि उनको कैसे अपना जो वो जगह है जहाँ पे उन्होंने ऑयल एक्सट्रैक्शन किया था उसको कैसे ठीक से रखना है। तो ऑयल स्पिल्स हुए, ये होते रहते हैं, पर उस बार उस कंपनी को 53.8 बिलियन का फाइन लगा था, विच इज अ बिग अमाउंट। तो उनको एक ही बार में जितना प्रॉफिट उनका हुआ होगा वो चला गया होगा। एंड दिस वाज जस्ट बिकॉज ऑफ एनवायरमेंटल मिसमैनेजमेंट। सेकंड वाज सोशल एंड एथिकल फेलियर व्हिच हैपेंड। वॉक्सवैगन करके एक कार कंपनी है, उन्होंने क्या किया था, अपनी गाड़ियों को, डीजल व्हीकल्स को धोखे से एमिशन टेस्ट पास करवा दिया, पर वो पकड़े गए और उनको फिर 27.4 बिलियन यूरोस का फाइन लगा था। तो वो वापस वही जब तक उनको उनके प्रॉफिट में झटका नहीं लगता ना, उनकी आंखें खुलती नहीं है। तो उनके प्रॉफिट को जबरदस्त झटका लगा था। गवर्नेंस कैटास्ट्रॉफी में एक वायर कार्ड करके कंपनी थी जिन्होंने कुछ फ्रॉड किया था, और जब वो पकड़ा गए, क्योंकि वो गवर्नेंस इशू था और वो पकड़ा गए, तो उनकी कंपनी को ही बंद करना पड़ा। तो बेसिकली अगर ESG तीनों का एक एक एग्जाम्पल दे तो ये तीनों बहुत बड़े एग्जाम्पल माने जाते हैं कि किस तरह से इतना ज्यादा झटका लगा उनको कि वो एक ही बार में समझ गए कि ESG पे काम करना क्यों इंपॉर्टेंट है। इट्स नॉट जस्ट सोशल वर्क बट इट इज समथिंग जो उनके कंपनी को लॉन्ग टर्म में एक अच्छी कंपनी और सस्टेनेबल कंपनी बनाएगी।
While on one side investors have become more conscious, investors जो हैं वो ये सोच के डिसीजन लेते हैं कि ये कंपनी ESG पैरामीटर्स पे सही आती है या नहीं, उसके हिसाब से वो पैसे देते हैं। और इन्वेस्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी प्राइवेट सेक्टर के लिए, किसी भी कंपनी के लिए, क्योंकि पैसे उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इन्वेस्टर अगर पैसे देगा नहीं तो वो अपना बिजनेस बढ़ा ही नहीं सकते हैं। और ये इन्वेस्टर्स जो हैं वो बहुत कॉन्शियस हो गए हैं। तो अब वो कॉन्शियस हो गए हैं, विच मीन्स वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स एनवायरनमेंट एंड सोसाइटी के लिए कॉन्शियस है। इसलिए प्रेशर बन रहा है कंपनी के ऊपर कि वो अपने ESG पैरामीटर्स को ठीक रखे और अपने बिजनेस प्रैक्टिसेस में उसको अच्छी तरह से कंप्लाई करे। तो बेसिकली क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर है, इन्वेस्टर्स के ऊपर प्रेशर है, इन्वेस्टर्स के ऊपर कौन प्रेशर लगाता है? तो कंज्यूमर्स। अभी उसके कारण कंपनीज के ऊपर प्रेशर है, इसीलिए कंपनीज जो है वो ESG पैरामीटर्स को फॉलो करती हैं। इस सब से क्या हुआ? बहुत सारे फ्रेमवर्क्स आए, ठीक है। ये मैं अभी पूरा एक्सप्लेन नहीं करूंगी, ये स्लाइड्स मैं आपको दे दूंगी। आपको कहीं पे कोई कुछ भी लगे कि पूछना है तो आप प्लीज मुझे लिख के पूछ सकते हैं। जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो GRI इनिशिएटिव है। जो दुनिया में सबसे ज्यादा फ्रेमवर्क आज के दिन कंपनीज यूज कर रही हैं वो है GRI इनिशिएटिव। बेसिकली एक फ्रेमवर्क है जिसमें बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं कि ये फलने चीज पे आपने क्या काम किया, इस पे आपने क्या काम किया, उसको आप डॉक्यूमेंट करते हैं और उसको फिर एक थर्ड पार्टी आके ऑडिट करती है और फिर आपको बोलती है कि रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो आज के दिन है वो GRI ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव है। उसके अलावा बहुत सारे हैं। तो जो 5-6 टॉप मोस्ट फ्रेमवर्क्स है उसके नाम और वो क्या है, कैसे हैं, वो मैंने इस टेबल पे लिखा है, पर इसको समझाने में काफी टाइम लगेगा, तो मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ देती हूँ। आप लोग इसको एक बार देख लीजिएगा। इन केस लगे कि इस पे वापस बात करनी है तो प्लीज एक मेल लिख सकते हैं मुझे। ये तो हो गया ESG क्या है, क्यों है, कब आया, कैसे है। और इसके आगे हमें देखना है कि इसमें हमारे लिए क्या है। मतलब ऐसी तो बहुत सारी चीजें हैं पर हम इसकी बात कर क्यों रहे हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसी दुनिया में हम भी रह रहे हैं। हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये दुनिया साफ रहे ताकि हम इसमें रह सके। मैं दिल्ली में रह रही हूँ और हर जगह न्यूज में आज के दिन देख ही सकते हैं कि दिल्ली गैस चेम्बर बना हुआ है। तो हम नहीं चाहते हैं कि पूरी की पूरी दुनिया वैसी हो जाए। सो वन इज कि हमें एनवायरनमेंट को तो प्रोटेक्ट करना ही है। सोशल, आप लोग सब ऐसे जगह पे पढ़ाई कर रहे हैं या आपका उद्देश्य ही ऐसा है कि आप सोशल का इंपॉर्टेंस अच्छे से समझते हैं, कम्युनिटी का इंपॉर्टेंस अच्छे से समझते हैं, तो वो शायद मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है। गवर्नेंस अगर कंपनी का ठीक नहीं रहेगा तो हमेशा की तरह ये जितने भी इश्यूज हैं वो चलते ही रहेंगे, कमेंगे नहीं। सो एक तो ये है कि ये चीजें अच्छी होनी चाहिए। पर अब अगर हम एज ए स्टूडेंट सोचे तो इसमें हमारे लिए क्या है, तो ये देखते हैं। ये नेक्स्ट फेज है ESG का, BRSR जो है वो एथिकल बिजनेस के लिए एक सरकार के द्वारा बनाया हुआ फ्रेमवर्क है, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, जो कि फिलहाल मैंडेटरी किया गया है टॉप 1000 कंपनीज को। मैंडेटरी किया गया मतलब उनको हर साल ये रिपोर्ट पब्लिश करनी है, सरकार को देना है, बताना है और पब्लिक में लेके आना है कि उन्होंने क्या काम किया है, ठीक है। इसमें एश्योरेंस अभी मैंडेटरी नहीं है। एश्योरेंस मैंडेटरी नहीं है का मतलब कोई थर्ड पार्टी एश्योरेंस नहीं करेगा, वो अपना उस फ्रेमवर्क पे रिपोर्ट करके पब्लिश कर देते हैं। ये 2023 तक का है, ठीक है। 2024 तक में अभी मैंडेटरी कर दिया गया है एश्योरेंस भी टॉप 250 कंपनीज, ठीक है। जो टॉप 250 कंपनीज होगी रेवेन्यू के हिसाब से, उनके लिए अब थर्ड पार्टी से उसको एक बार कंप्लाई करके तब पब्लिश करना है। मतलब आपके बोलने पे सिर्फ सेल्फ सर्टिफिकेशन पे नहीं जाएंगे, हम चेक भी करेंगे। 2025 से 500 कंपनी को करना है ऐसा। 2026 जो कि अगले साल, मतलब अब जो है वो पूरी जो 1000 कंपनी है, जो टॉप 1000 कंपनीज है इंडिया में, उन सबको अपना मैंडेटरी और अश्योरेंस के साथ ये रिपोर्ट्स लेके आनी। विच मीन्स कि ये जो एरिया है इसमें बहुत ज्यादा काम होना है इन 1000 कंपनी में, राइट। अगर हम किसी चीज को पहले वॉलेंटरी से मैंडेटरी की तरफ लेके जाते हैं, तो जब मैंडेटरी होता है उस वक्त लोगों को बहुत अपने
सिस्टम्स पे काम करने की जरूरत होती है, बहुत लोगों को हायर करने की जरूरत होती है, बहुत सारे नए स्किल्स की जरूरत होती है। सो ये जो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, तो ये 1000 कंपनी के लिए मैंडेटरी हुआ है, इसके बाद ये उसके नीचे वाले कंपनीज के लिए मैंडेटरी होगा। सो ये धीरे धीरे गवर्नमेंट पॉलिसी के हिसाब से आगे बढ़ रहा है, और इसके हिसाब से अगर हम देखें तो आगे बहुत लोगों की जरूरत पड़ने वाली है इस काम को करने के लिए, क्योंकि अभी ये स्किल्स जो है ना बहुत अवेलेबल नहीं है। अगर हम चाहें भी तो बहुत इजीली हमें ये स्किल सेट मिलता नहीं है। अगर हम देखें कि कितने जॉब का अंदाजा है कि कितना जॉब क्रिएट करेगा ये सेक्टर, तो फाइनेंशियल ईयर 2028 तक 7.2 मिलियन ग्रीन जॉब्स, ये जॉब्स को हम ग्रीन जॉब्स बोलते हैं ऑब्वियसली बिकॉज ये एनवायरमेंटली क्लीन और इस तरह से डिजाइन किया जा रहा है। तो 7.2 मिलियन नए लोगों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अभी हम अगर इंडस्ट्री वाइज देखें तो कहाँ कहाँ रिन्यूएबल एनर्जी में जरूरत पड़ेगी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में जरूरत पड़ेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर में जरूरत पड़ेगी, बहुत सारी ऐसे जगह हैं जहाँ पे नए लोग, नए स्किल्स की जरूरत पड़ेगी, जिसके लिए नए तरह की ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी। बाय 2047 जो है ये बढ़ के 35 मिलियन अनुमान किया जा रहा है कि लोगों की जरूरत पड़ेगी सिर्फ इंडिया में। मैं वर्ल्ड की बात नहीं कर रही हूँ, ये सिर्फ इंडिया का अनुमान किया हुआ डेटा है। और ये अभी 2-3 दिन पहले भी न्यूज़पेपर में जो आर्टिकल आया था उसके हिसाब से भी ग्रीन जॉब्स जो हैं वो करीब करीब 4 पॉइंट सम मिलियन होने वाला है। इंडिया का टारगेट जो है डीकार्बोनाइजेशन, थोड़ा सा मैं बता दूंगी डीकार्बोनाइजेशन क्या होता है, क्योंकि मैं कोई भी ऐसा टर्म छोड़ना नहीं चाहती हूँ जो बिल्कुल समझ में नहीं आए। डीकार्बोनाइजेशन बाय 2070 इंडिया का टारगेट है। ठीक है, ये टारगेट यूएन में जाकर के हम अनाउंस करते हैं कि हम अपने देश में कार्बन को जो है, कार्बन जो रिलीज होता है अलग अलग चीजों से, उसको घटा करके एक पर्टिकुलर लेवल तक लेके आएंगे। ये हमारे इंडिया का टारगेट है नेट जीरो, मतलब हम जितना प्रोड्यूस कर रहे हैं उतना ही घटाएंगे बाय 2070। अगर इस चीज को होना है, अगर हमें इस चीज पे काम करना है इस टारगेट को लेके, तो अप टू 50 मिलियन जॉब्स क्रिएट होंगे, और ये हर सेक्टर में क्रिएट होंगे। एग्रीकल्चर में क्रिएट होंगे, मोबिलिटी में, इंडस्ट्री में, एनर्जी में, हर जगह पे ग्रीनिंग ऑफ वर्क होगा, और उसमें करीब 50 मिलियन लोग नए आएंगे नए स्किल सेट के साथ। तो ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप अभी उस फेज में हैं जब आप नई चीजों को सीख सकते हैं, नई चीजों को लर्न कर सकते हैं, और अपने लिए एक नया बहुत ही अलग काम जो कि बहुत ही एथिकल भी है उसमें देख सकते हैं। सो BRSR कंपल्सरी होने से और इंडिया का जो कमिटमेंट है नेट जीरो कार्बन एमिशन का, इन दोनों को जोड़ के अगर हम देखें तो कुछ इस तरह का हमें जॉब सिनेरियो दिखता है आगे। तो दिस इज फ्यूचर ऑफ ESG। क्या क्या कहाँ कहाँ पे जॉब्स क्रिएट होने वाले हैं उसका मैंने एक सेकेंडरी स्टडी किया कि ऐसी कौन कौन सी जगह है जो नया, बिल्कुल नया स्किल सेट होगा। जैसे जो डेटा कलेक्शन होगा, अगर हम ESG का डेटा कलेक्शन करेंगे तो ये ESG एनालिस्ट जो है, जो एमिशंस कितना हुआ, एमिशंस कितना घटा, वाटर कैसे मेजर होगा, वेस्ट का क्या डेटा होगा, ये बिल्कुल नया स्किल सेट है। इस पे इनफैक्ट बहुत कम जगह पढ़ाई भी हो रही है क्योंकि ये इतना नया है कि इसको फिलहाल कोई फ्रेमवर्क बन नहीं पाया है जो ये काम भी कर सके सही से। तो ये डेटा कलेक्शन, फिर उस डेटा को एनालिसिस करने का काम वो भी एक नए तरह के लोग करेंगे। रिपोर्ट्स, जो भी रिपोर्ट्स कंपनी दिखा रही है कि आज हमने पब्लिश किया, तो एक तो वो पब्लिकेशन के पहले जो उनका ऑडिट होगा वो लोग होंगे, फिर जब पब्लिश किया तो उसको एनालिसिस, उसको स्टेक होल्डर्स को बताना कि ये क्या रिपोर्ट है। सो बेसिकली वो पूरा जो साइकिल है, क्लाइमेट रिस्क असेस करना, क्लाइमेट रिस्क को मिटिगेट करना, ग्रीन टेक्नोलॉजी के ऊपर एडवाइजरी देना, वो एक अलग तरह के कंसल्टेंट्स होंगे, सर्कुलर इकोनॉमी में अलग तरह के कंसल्टेंट्स होंगे। सो बेसिकली ये सारे एरियाज हैं जो बिल्कुल अभी एकदम नए हैं और इसमें अलग अलग लेवल का स्किल सेट लगेगा। तो ये कुछ चीजें हैं जो मैं आपको चाह रही थी कि आप जाने और आप सोचे कि आपका कहीं में इसमें इंटरेस्ट हो, कुछ आप इसमें देखना चाहते हो, तो प्लीज फील फ्री कि आप इसको थोड़ा सा सर्च करें, थोड़ा सा देखें कि क्या चल रहा है इस दुनिया में, तो ये आपको हेल्प करेगा। सिमिलरली वो तो इन्वायरमेंट का था, ये सोशल का है। सो एथिक्स ऑडिटर्स होंगे जो ह्यूमन राइट्स का कंप्लायंस है कि नहीं, लेबर का कंप्लायंस है कि नहीं, अभी तो लेबर के भी और नए रूल्स आ गए हैं,
तो उससे हम कंप्लाई करें। इनफैक्ट इंटरनेशनल ये जो सप्लाई चेन्स होते हैं ना, ये सिर्फ एक कंट्री में नहीं रहते हैं। सो इंटरनेशनल सप्लाई चेन के जो ऑडिटर्स हैं ना, वो भी इंडिया में ऑडिट करेंगे, क्योंकि उनको जब तक वो ऑडिट नहीं करेंगे कोई भी सामान एक्सपोर्ट नहीं हो सकेगा। तो वो एक अलग लेवल का काम है। DEI, सो ये डाइवर्सिटी, इक्विटी एंड इंक्लूजन, ये एक इसका अलग ही वर्कफोर्स तैयार होगा, जो हर कंपनी में भी जरूरत है। बोर्ड से लेकर के, मैनेजर से लेकर के, उनके सप्लाई चेन में जितने भी अलग अलग स्टेक होल्डर्स है, सब जगह जरूरत पड़ेगी। फिर ये OHS होते हैं, और ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी स्पेशलिस्ट्स, कि आप जिस काम को कर रहे हैं उस काम के लिए आपके पास इनफ अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं, कि आपके ऑक्यूपेशन से रिलेटेड क्या क्या हजार्ड हो सकता है, आपको क्या क्या इक्विपमेंट आपके पास होने चाहिए ताकि आप उस हजार्ड से बच सके। तो ये स्पेशलिस्ट की भी बहुत कमी है। तो हम जब सोशल इसमें जाएंगे ESG के, तो उसमें इन चीजों पे अलग अलग लेवल पे बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। ये है गवर्नेंस, जो कंपनी के अंदर जो काम हो रहा है उसको खुद को भी वो स्किल सेट्स चाहिए। अगर उनको अलग तरह का फाइनेंस चाहिए, जैसे एक सस्टेनेबल फाइनेंस होता है, मैं एग्जांपल लेके बता रही हूँ। सस्टेनेबल फाइनेंस वो मैकेनिज्म होता है, जैसे अगर किसी कंपनी को सपोज कीजिए कि वर्ल्ड बैंक से लोन लेना है, IFC वर्ल्ड बैंक का एक विंग है जो लोन देता है, तो IFC बोलेगा कि आप अगर सस्टेनेबिलिटी पे काम करते हो तो हम आपको 8% पे लोन देंगे, नहीं करते तो हम आपको 12% पे देंगे। तो कोई भी कंपनी चाहेगी कि 8% पे ले, तो इसीलिए वो सस्टेनेबिलिटी पे काम करेंगे। तो वो सस्टेनेबल फाइनेंस जो है वो एक बहुत बड़ा फाइनेंस का ऑप्शन बन के आ रहा है, और हर कंपनी चाहेगी कि हम उसमें उसको उस पैसे को ले पाए। तो उसके जो उस चीज को समझने वाले जो लोग हैं फाइनेंस में, उसकी बहुत कमी है। और जब ये इतने लार्ज स्केल पे जाएगा कि 1000 कंपनी, 2000 कंपनी, सबको ये मैंडेटरी रिपोर्ट करना है, उस वक्त ये जरूरत बहुत पड़ेगी। फिर वैसे ही फिर वेरीफाइड ग्रीन इन्वेस्टमेंट, ESG डेटा एनालिसिस, डेटा ड्रिवन कंप्लायंस, ये सारे कंपनी के अंदर के जॉब हैं जो उनको खुद अपने डिपार्टमेंट्स में लेने होंगे। तो ये फिर से एक नया तरह का स्किल्स चाहिए होगा, इसकी अलग से पढ़ाई होती होगी, और इसको अलग से पढ़ के आपको एक अलग डायरेक्शन में अपना करियर देखना होगा। ये मैंने इसलिए डाला है कि एक बार थोड़ा सा अंदाजा मिले कि किस लेवल का पैसा इस मैम सेक्टर में घूम रहा है। हाँ, आप जो स्लाइड्स चेंज कर रही है वो स्क्रीन पे दिखाई नहीं दे रहा है। मैम वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। ओके नहीं, वॉइस तो क्लियर है, वॉइस इज क्लियर। हाँ, लेकिन वो आप ये नहीं कर, यू हैव टू प्रेजेंट दो स्लाइड्स आल्सो। ओके, वाई सो लेट? थोड़ा पहले बोलना था। ठीक है, मैं एक बार स्लाइड्स दिखा देती हूँ। अभी दिख रहा है क्या? नहीं, ना अभी भी चेंज नहीं हो रहा है? दिख रहा है, अभी दिख रहा है। अच्छा, चेंज हो रहा है? ओके। ओके, मैं एक 12वें स्लाइड्स पे हो आप अभी। हाँ ठीक है। तो ये मैंने दिखाया था कि कितना जॉब किस ईयर के हिसाब से बना हुआ है। ठीक है, कि अगर BRSR कंपलसरी हो जाता है और हमारा जो नेट जीरो का कमिटमेंट है 2070 तक, उसके हिसाब से 2028 में तो कितना जॉब्स एस्टिमेटेड है, 2047 में कितना, ये वो वाला स्लाइड है। दिस इज एनवायरमेंटल रोल इन ग्रीन इकोनॉमी, कहाँ पे क्या क्या रिक्वायरमेंट्स आने वाला है जो फ्यूचर में आएगा। आज से 4-5 साल तक में ये सारे रिक्वायरमेंट्स आएंगे। ये है हमारा सोशल, जो मैं अभी जस्ट बता रही थी कि एथिक्स ऑडिटर्स की जॉब, एथिक्स ऑडिटर एक नया पूरा एक अलग ही थीम बन के तैयार हो रहा है, जिसमें लेबर के साथ क्या इश्यूज हैं, नहीं है, वो वेरिफिकेशन होगा। ह्यूमन राइट्स कंप्लायंट है या नहीं, वो वेरिफिकेशन होगा। सिमिलरली DEI, डाइवर्सिटी, इक्विटी एंड इंक्लूजन के ऊपर होंगे बहुत सारे लोग। OHS स्पेशलिस्ट, विच इज ऑक्यूपेशन हेल्थ एंड सेफ्टी स्पेशलिस्ट, ये एक अलग पूरा काडर तैयार होना है। और ये है हमारा जो कंपनी के अंदर के लोग जो चाहिए पड़ेंगे अगर इस पूरे फ्रेमवर्क को सच में आगे लेके जाना है गवर्नमेंट को और कंपनीज को। तो ये सस्टेनेबल फाइनेंस, वेरीफाइड ग्रीन इन्वेस्टमेंट, इन सब में लोग लगेंगे। ये बिल्कुल ही डिफरेंट स्किल सेट है। अभी आज के दिन में अगर हम कंपनीज में देखें तो बड़ी बड़ी कंपनीज में भी, फॉर एग्जाम्पल हिंदुस्तान यूनिलीवर भी आप ले लीजिए, या पेप्सिको, या मतलब
आई शुड नॉट बी नेमिंग कंपनीज, बट किसी में भी ये सारे रोल्स अभी हैं नहीं, और इन सबको ये चाहिए। आज से 5 साल के बाद हर कंपनी में ये सारे रोल्स होंगे, तो अगर चाहिए तो ये कहीं ना कहीं से तो ये स्किल सेट लाना पड़ेगा। तो ये वही बच्चे हो सकते हैं जो आज के दिन में ये सब जान सके और इसके ऊपर अपनी पढ़ाई कर सके, अपना होराइजन बढ़ा सके। ये स्लाइड बेसिकली है ये बताने के लिए कि कितना पैसा अभी इस सेक्टर में आ रहा है। मतलब ये तो थोड़ा पुराना ही स्लाइड है, 2020 का ही डेटा है। 100 ट्रिलियन डॉलर्स इज द एक्सपेक्टेशन, जो कि यूएन का डेटा है, इन रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टिंग होगा। तो ये कैसे होता है कि बहुत सारी कंट्रीज और बहुत सारी कंपनीज अपना कमिटमेंट जाके यूएन में बताती है कि हम इस साल इतना पैसा कमिट कर रहे हैं। तो वो कमिटमेंट जो ऐड होकर के डेटा आया है वो करीब 100+ ट्रिलियन है। और ये डेटा मैंने लिया है आईएफसी के रिपोर्ट से कि क्या अभी कितना फाइनेंस इसमें आ रहा है। हमने बहुत सारी कंपनीज की बात की, प्राइवेट सेक्टर की बात की। ऑन द अदर हैंड दुनिया में हर देश, ऑलमोस्ट हर देश को भी इस फ्रेमवर्क पे काम करना है। जो मैंने अभी बोला था ना कि इंडिया का कमिटमेंट है कि हम 2070 तक नेट जीरो हो जाएंगे। नेट जीरो का मतलब कि हम जितना कार्बन एमिशन कर रहे हैं, चाहे वो इंडस्ट्री से कर रहे हो, एग्रीकल्चर से कर रहे हो, या डेयरी से कर रहे हो, या किसी भी सेक्टर से कर रहे हो, वो सारा मिला करके हमारा जो नेट एमिशन है, जो बहुत हाई है, हम टॉप 5 में आते हैं, उसको हमको घटा करके ऐसा काम करना है कि दूसरी तरफ से हम घटा रहे हैं। मान लीजिए कहीं पे बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है उसको रोकना, तो दूसरी तरफ कहीं और काम करके उसको हम घटा रहे हैं, और उसको नेट जीरो मतलब जितना हम प्रोड्यूस कर रहे हैं कार्बन उतना ही हम घटा रहे हैं, इसको मिला करके नेट जीरो हो जाए कि हमने कुछ नहीं बुरा किया है दुनिया में एनवायरनमेंट से। वो कमिटमेंट इंडिया का है कि 2070 तक हम नेट जीरो हो जाएंगे, विच इज अ ह्यूज कमिटमेंट। ठीक है, वो मतलब अपने में बहुत बड़ा कमिटमेंट है। उसको करने के लिए इनको ईएसजी का जो भी फ्रेमवर्क है उसको फॉलो करना ही पड़ेगा। सो बेसिकली एसडीजीज जो है ना, वो सरकार जितनी भी गवर्नमेंट है उनके लिए है कि आप इस फ्रेमवर्क को फॉलो करके अपने कमिटमेंट्स तक आइए। अगर आप इस फ्रेमवर्क को भी देखेंगे तो ये फाइनली गवर्नेंस, एनवायरनमेंट और सोशल में ही फाइनली बाइफरकेट होगा। तो ये गवर्नमेंट के कमिटमेंट्स होते हैं। आई थिंक मैं बहुत देर से बोल रही हूँ, थैंक यू। अगर आप लोगों को कुछ भी पूछना है तो आप अभी पूछ सकते हैं, फिर मैं इसको रोकती हूँ। थैंक यू सो मच मैम फॉर दिस वेरी इंसाइटफुल सेशन। आई बिलीव बहुत लोगों को यहाँ पे अभी क्लियर हो गया है द आइडिया बिहाइंड द ESG। एंड नाउ आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, आपको कोई क्वेरीज है जो आप पूछना चाहेंगे, प्लीज पूछिए। आई बिलीव मैम बहुत अच्छे से समझा पाएंगे। मैं एक सवाल नहीं है, एक यानी स्टूडेंट से रिलेटेड ही, लाइक जैसे आपने बताया कि लाइक ये दिस इज अपकमिंग सेक्टर एंड दिस इज अ प्रॉमिसिंग सेक्टर। तो हमारे काफी सारे जो स्टूडेंट्स है दे गो फॉर डेवलपमेंटल स्टडीज, सोशल वर्क, जैसे टाटा इंस्टीट्यूट में पढ़ने के लिए जा रहे हैं, या फिर अजीम प्रेम जी जैसे संस्थानों में। सो आप क्या उन्हें एक सजेशन, सलाह देना चाहेंगे कि वो यूनिवर्सिटी जाने के पहले भी और यूनिवर्सिटी जाने के बाद किस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करें ताकि इस तरह की जॉब्स मिलने में उनको आसानी हो? बिल्कुल राहुल, दो बातें हैं। एक तो ये कि ये वो बच्चे हैं जो ऑलरेडी बहुत मोटिवेटेड हैं कि हमें इस सेक्टर में काम करना है। मतलब डेवलपमेंट सेक्टर एज ए होल, चाहे वो इन्वायरमेंट हो या सोशल हो, वो इन इटसेल्फ बहुत लोगों को नहीं पता होता है। सो आई एम सो हैप्पी कि आई एम एबल टू स्पीक टू दीज किड्स जो ऑलरेडी मोटिवेटेड हैं कि हमें इस सेक्टर में काम करना। अब इस सेक्टर को अगर हम देखें तो इसमें जॉब अपॉर्चुनिटी आपको बहुत कम दिखेगी। अगर हम जो हमारा पहले का लेंस था, मतलब ऑब्वियसली जिस समय मैं पढ़ाई कर रही थी उस समय से लेकर अभी तक देखूं, तो जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड स्पेशली नाउ विद द श्रिंकिंग ऑफ फंडिंग एंड ऑल, काफी
कम स्कोप दिखता है। तो मैं एक नया होराइजन दिखाना चाह रही थी कि दिस इज एन अपकमिंग सेक्टर, क्लाइमेट, इसके ऊपर बहुत काम है, बहुत तेजी से ये सेक्टर बढ़ रहा है, जो कि हमारे जो हमारा सोच है, जो हमारा जिस 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 चीज को हम सोच करके आगे बढ़े थे कि हम डेवलपमेंट सेक्टर में काम करेंगे, वहां वो सही उतरता है। हम ऐसा नहीं है कि हम एथिक्स से कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, और तभी भी हम वो काम कर पा रहे हैं जो हम करना चाहते हैं। तो ये वो सेक्टर है ESG जो अपकमिंग है, जिसमें बहुत पैसा आ रहा है, जिसमें बहुत काम चल रहा है, और आगे अभी बस शुरू हुआ है। तो आप जब शुरुआत में उसके पार्ट बनते हैं ना, तो आप वो होते हैं जो आगे जाके लीडर्स बनेंगे। तो इसलिए मैं तो यही बोलूंगी कि थोड़ा सा इसके बारे में पढ़िए। मैं एक ये काम कर सकती हूँ कि कुछ स्टडी मटेरियल आप राहुल को और अनुप्रभा दोनों, आप लोग को दोनों को भेज दूंगी, ताकि आप इन बच्चों को भी दे सके और वो उसको पढ़ सकते हैं। थोड़ा अगर कॉम्प्लिकेटेड होगा तो आई वुड श्योरली बी हैप्पी टू इंटरैक्ट। तो मैं वो एक बात कर सकते हैं हम कि इसके ऊपर, क्योंकि हर हर जो जैसे इन्वायरमेंट भी है, उसमें बहुत सारे अलग अलग चीजें हैं। अगर हम क्लाइमेट की ही बात करें तो उसमें क्लाइमेट में मान लीजिए एमिशंस में आते हैं, जो कार्बन इमिशन, GHG इमिशन की हम बात करते हैं, उसमें स्कोप 1, स्कोप 2, स्कोप 3 होता है। स्कोप 1 है जो कंपनी खुद इमिट करती है, स्कोप 2 होता है जो उसके वेंडर्स या उसका जो सेकेंड लेयर वो इमिट। स्कोप 3 में बहुत स्कोप है, क्योंकि स्कोप 3 है एग्रीकल्चर या एनिमल हस्बेंड्री। अब वहां पे स्किल सेट बहुत कम है, और वो एरिया बहुत बड़ा है, जो कि आगे जाके वहां पे बहुत काम होगा। तो मुझे लगता है ये सब जानकारी पहले से रहना, और तभी आप उस सब्जेक्ट को चूज भी कर पाएंगे कि अच्छा इसको पढ़ के देखते, इन्वायरमेंटल साइंस को पढ़ के देखते हैं। क्योंकि हम पहुंच तो जाएंगे यूनिवर्सिटी। अजीम प्रेम जी भी बहुत काम कर रहा है इसके ऊपर। आई एम श्योर टाटा में भी बहुत पढ़ाई करा है। अजीम प्रेम जी तो इनफैक्ट बहुत पैसे भी दे रहे हैं इस तरह की चीजों पे काम करने के लिए। तो पहले से पता होना हेल्प करेगा थोड़ा उस सेक्टर को समझने में, उसमें जाने में, उसको पढ़ने में आगे, और उसके एक्सपर्ट बनने में। सो मेरी तरफ से मैं ये कर सकती हूँ कि कुछ स्टडी मटेरियल दे करके, एंड देन वी कैन हैव अनदर राउंड ऑफ डिस्कशन, अगर किसी को कुछ पूछना हो तो। हाँ, किसी स्टूडेंट ने मैसेज में सवाल पूछा, अनुप्रभा, कैन यू प्लीज रीड दैट क्वेश्चन? Sure. So, ma'am, the question is, according to you, what are the skills that are required to develop during our master's education? बहुत सॉरी, क्या नाम है इनका जिन्होंने पूछा है? Sushant is asking. शांत। ओके, सो शांत, एक्चुअली ये जो फील्ड है ना, जो जिस तरह से मैंने बताया, बहुत ही ब्रॉड बताया है। तो आपको अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चूज करना पड़ेगा कि आप ज्यादा साइंटिफिक टाइप्स चीजों को पसंद करते हैं या ज्यादा अकाउंट्स टाइप की चीजों को पसंद करते हैं। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अगर ज्यादा साइंटिफिक टाइप की चीजों को पसंद करते हैं तो कार्बन का जो बिल्कुल साइंस रिलेटेड तरीका है काम करने का, मेजर करने का, उसको समझने का कि कैसे कम होगा या ज्यादा होगा, वो एरिया होगा आपके लिए। अगर आप अकाउंट टाइप की चीजों को पसंद करते हैं तो आप कार्बन अकाउंटिंग हो गया या ऑडिटिंग हो गया, ये वाला एक एरिया, या फाइनेंस हो गया, ये वाला एरिया बनेगा फिर आपके लिए। या अगर आप सोशल चीजों में जाना चाहते हैं जैसे मैं हूँ, तो आपको फिर उस हिसाब से कार्बन एग्रीकल्चर से कैसे रिलेट होता है, कार्बन जेंडर से कैसे रिलेट होता है, कार्बन लेबर से कैसे रिलेट होता है, ये वाला एरिया की पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो वो डिपेंड करता है कि आपका क्या माइंडसेट है, आप किस तरह की चीजों को ज्यादा पसंद करते हैं। पर इतना बड़ा स्कोप है, इतना बड़ा होराइजन है कि आपका कुछ भी कोई भी टेक हो, साइंस बेस्ड हो, अकाउंट्स बेस्ड हो, आप इस सेक्टर में अपने लिए जगह बना सकते हैं। आई होप आपको थोड़ी क्लैरिटी मिली हो। किसी को कुछ और? यस, अनुप्रभा, गो अहेड। Yes, thank you so much for answering, ma'am. मैं भी एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगी. I have gone through your CV. मैंने आपका CV पढ़ा और आपका करियर पाथ जो है वो काफ़ी रिमार्केबल रहा है. और आप जिस तरह से आपका जो करियर इंटरसेक्ट हो रहा है, even you have studied zoology and now you are related working in field related to gender as well. So यहाँ पे काफ़ी students है
जिनको ये यूनिक करियर पाथ चूज करने में स्ट्रगल वो करते हैं। तो आप उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे, और आपने कैसे आइडेंटिफाई किया कि आपको इस नीश, इस स्पेसिफिक करियर में काम करना है? तो आप वो अगर बताएंगी तो इनको काफी इंस्पायरिंग लगेगा। जी, मैं बिल्कुल ऑनेस्टली रिप्लाई करूंगी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मुझे सब पहले से पता था। मैं भी आप लोग के एज से क्रॉस की हूँ, और मैंने जो मुझे पसंद आया कि मुझे ये करना है, मैं वो करती चली गई। सो मैंने किया एमबीए। एमबीए के बाद मुझे मन किया कि मैं विमेन एम्पावरमेंट, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के लिए काम करूंगी। तो मैंने वहां से काम शुरू किया। काम मुझे मिला एग्रीकल्चर सेक्टर का, फिर वो मुझे बहुत अच्छा लगा। उससे मुझे पता चला कि अच्छा, यहाँ पे इतना जीएचजी मिशन होता है, इसमें क्लाइमेट पे इतना काम हो रहा है। वैसे करते करते मैंने धीरे 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 अपना स्किल्स जोड़ना शुरू किया। तो बेसिकली ऐसा कुछ नहीं है कि पहले से आपको पता होता है कि अच्छा मैं ना यहाँ जाके यहाँ कर सकती हूँ। मोस्टली इट्स अबाउट व्हाट यू आर पैशनेट अबाउट। आपको जिसका जो काम अच्छा लगता है, आप वो धीरे धीरे अपने आप ही अच्छा करने लग जाते हो। तो मेरा जो पाथ है, मेरा जो करियर का जर्नी है, मोस्टली पैशन के हिसाब से ही चला है। थैंक यू सो मच मैम। काफ़ी रिमार्केबल चीज़ आपने कही कि जो हमारा पैशन होता है उसको अगर फॉलो करते हैं तो स्मूथली हम अपना करियर परस्यू कर पाएंगे। एंड अगेन थैंक यू सो मच। अगर किसी को कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। मेरा एक सवाल है, ये है कि इस फील्ड में हमें अगर काम करना है तो हमें जैसे हमारे यहाँ जो बच्चे हैं वो ज़्यादातर एमए डेवलपमेंट या फिर सोशल साइंसेस वगैरह करते हैं। सो टेक्निकली कोई कोर्सेस होंगे इसके बारे में, तो वो आप बता सकती है क्या? देखिए, इन्वायरमेंटल साइंस करके कोर्स है, फिर क्लाइमेट ईएसजी के ऊपर भी कोर्सेज अब आ गए हैं, तो आप उसको भी कर सकते हैं। फिर अगर प्योर साइंस में जाएंगे सोशल बैकग्राउंड के साथ, तो भी कोर्स है कि आप आई डोंट नो टाटा में है या नहीं, बट टेरी में तो जरूर है कि आप वाटर के ऊपर कोर्स कर सकते हैं, आप गवर्नेंस के ऊपर कोर्स कर सकते हैं। सो बेसिकली हर चीज के ऊपर अलग अलग जगह पे कोर्स अवेलेबल है। आप जेंडर के ऊपर कोर्स करते हुए क्लाइमेट के ऊपर कोर्स कर सकते हैं। तो वो इंटरसेक्शन आजकल बहुत ही फेमस है, मतलब उसमें बहुत बहुत अलग अलग जगह पे पढ़ाई हो रही है। तो ये सारी चीजें जिसपे कोर्स किया। अगर आपको एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट है तो वहां पे बहुत सारी नई चीजें उभर के सामने आ रही हैं, तो उसमें आप देख सकते हैं कि आप एग्रीकल्चर रिलेटेड क्लाइमेट पे क्या कोर्स कर सकते हैं। मतलब मैं बहुत ज्यादा तो टच में नहीं हूँ सारे यूनिवर्सिटीज से कि मैं बता पाऊँ कि किस यूनिवर्सिटी में कौन सा कोर्स है, बट आई कैन ट्राई एंड सी कि कहाँ पे क्या है, किस तरह के कोर्सेज अवेलेबल हैं। सूरज, इज दैट व्हाट यू आर लुकिंग फॉर? यस, थैंक यू सो मच मैम आप कोर्सेज के बारे में बताने के लिए। And if anybody else would like to ask question, or else we could move towards the conclusion of the session. Okay, so with that, मैं एक और मेरे एक पूछना है कि जैसे आपने कहा कि जैसे हाउ दिस ESG also taking an account that कि जेंडर एम्पावरमेंट के लिए, या फिर लेट्स से कि हाउ इट इज टारगेटिंग द वीमेन एज अ कम्युनिटी। तो क्या अभी तक एनी एज अ पॉलिसी along with gender it's also considering the backward caste communities, या ऐसा कुछ? because some of our students are also studying specifically in women studies, or some of them are doing Dalit and tribal social work. So yeah. सो राहुल, मैं मतलब कुछ एग्जाम्पल से बता सकती हूँ कि जैसे मैंने बताया ना, सप्लाई चेन जो होते हैं, वो इंटरनेशनल सप्लाई चेन्स भी जो है ना, वो इंडिया, फिर इंडिया के बाद से बांग्लादेश, ऐसे करके बहुत लंबे वो सप्लाई चेन्स होते हैं। पर उनका ये मैंडेट होता है कि जहां पे भी, जहां से भी वो सोर्स कर रहे हैं, वो सब जगह सारी चीजें कंप्लायंट हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो चाय के बगान से चाय सोर्स कर रहे हैं, तो वो फिर वहां पे जो भी इश्यूज हैं, चाहे वो लेबर इश्यूज हो, चाहे वो इश्यूज रिलेटेड टू वुमेन, फॉर एग्जांपल सेक्सुअल वायलेंस या जेंडर बेस्ड वायलेंस जो भी है, वो सारा
उनको सारे पैरामीटर्स पे क्लैरिटी चाहिए होता है, उनको सब पे कंप्लायंट होना होता है। सो बेसिकली वो कहाँ से क्या सोर्स कर रहे हैं, कहाँ से क्या काम कर रहे हैं, उस पर बहुत डिपेंड करता है कि उस पर्टिकुलर ज्योग्राफी में क्या इश्यूज हैं। और जनरली जहाँ पे भी लेबर, जहाँ पे भी वर्कर्स, ये वाले लोग हैं, वहाँ विमेन मिलेंगी ही मिलेंगी, और वहां पे ये सारे मुद्दे आएंगे ही आएंगे। तो ये अभी तो क्योंकि कंपलसरी नहीं किया गया है, बट जैसे ही मैंडेटरी किया जाएगा तब बहुत तेजी से दिखना शुरू होगा कि आप सोर्स ही नहीं, आप एक्सपोर्ट ही नहीं कर सकते हैं जब तक आप इन चीजों पे काम नहीं किए हैं, जब तक आप दिखा नहीं रहे कि आप इन चीजों पे काम करके चाइल्ड लेबर नहीं कम कर रहे हैं या वायलेंस अगेंस्ट वुमेन नहीं कम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये मुद्दे जो बिल्कुल कंपनी के परव्यू से बाहर चले गए थे, उसको वापस लाने की कोशिश की जा रही है कि आप कम्युनिटी से काम करते, कम्युनिटी के साथ काम करते, तो उनके इश्यूज को समझिए और उनके साथ काम कीजिए। और अगर नहीं करेंगे तो आप एक्सपोर्ट मार्केट में काम नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी चीजें आ रही हैं। इट विल टेक अ बिट ऑफ टाइम, आई अंडरस्टैंड आप जिस कोर मुद्दों की बात कर रहे हैं, पर धीरे धीरे निकल के आ रही। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने बीबीसी का एक रिपोर्ट देखा होगा, हाल फिलहाल में शुगर मिल्स के ऊपर आया था, और उसको सारे जितने भी बड़े कंपनीज है सबको उन्होंने बिल्कुल वहां पे शेम किया था। उसका असर होता है, उसका असर हुआ। तो शुगर मिल पे, या हमने चाय के ऊपर बहुत बार देखा है कि चाय में महिलाओं के साथ जितना डिस्क्रिमिनेशन होता है या सेक्सुअल असॉल्ट होता है, उसके ऊपर रिपोर्ट्स आए थे। तो उसको लेकर के फिर काम शुरू होता है, पर मैंडेटरी जो भी चीजें हैं वो ज्यादा तेजी से काम करती हैं। सो आई एम रियली होपफुल कि जब ये मैंडेटरी हो जाएगा ना 2026 के बाद, तब बहुत काम दिखने को मिलेगा, स्पेशली इन सप्लाई चेन्स कंपनी के साइड से। Yes, thank you really. I guess Anuprabha, someone has asked question in box. Please check. So, Ma'am, Sagar is asking, what are the things to be kept in mind before choosing any particular course for masters? So, पहले तो आप जो भी मास्टर्स के कोर्स हैं उसको निकाल के देखिए कि उस पर्टिकुलर कोर्स में आगे काम क्या करना होगा, क्योंकि वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। कि आपने मान लीजिए जेंडर का कोर्स लिया है, तो आप ये नहीं फिर एक्सपेक्ट कर सकते कि आप फाइनेंस में काम करेंगे, राइट? फिर आपको वो जेंडर क्लाइमेट, मैक्सिमम जेंडर क्लाइमेट के नेक्सस में काम करना होगा। तो वो आप जरूर एक बार देखिए कि वो जो आप कोर्स देख रहे हैं उसका आगे क्या रोल होगा आपके लाइफ में, आपके काम में, और वो मैच करता है कि नहीं आपके एस्पिरेशन से। ऐसा कोई कोर्स नहीं होगा एनवायरनमेंट ESG सेक्टर में जो जॉब आपको नहीं दिला पाएगा, क्योंकि इतनी कमी होने वाली है लोगों की कि जॉब तो मिलेगा ही, पर क्या वो आपके एस्पिरेशंस को मीट करता है या नहीं, वो देखने की जरूरत पड़ेगी। उसके लिए आपसे बेटर जज और कोई नहीं हो सकता है कि आपको क्या पसंद है, आपको आगे क्या करना है। जैसे मुझे एग्रीकल्चर में ही काम करना है, ये मेरे अलावा और कोई नहीं सोच सकता है मेरे लिए। ये आपको थोड़ा देखना पड़ेगा कि वो कोर्स आपके एस्पिरेशन से मैच करता है या नहीं। काफी सारे स्टूडेंट्स अभी भी है, आई कैन सी हिमांशु, साक्षी, पवन और बाकी भी। आपके कोई सवाल होंगे तो प्लीज पूछिए नया मैडम से, क्योंकि काफी इम्पोर्टेंट है और आपके करियर पाथ को लेकर भी। सो बिना कोई संकोच करे किए हुए आप सवाल पूछ सकते हैं, अपना सवाल लिख सकते हैं। राहुल, इनकेस आगे भी कोई किसी को लगे कि बात करने की जरूरत है, अगर कुछ और इंफॉर्मेशन चाहिए या इससे रिलेटेड कोई और सब्जेक्ट पे बात करनी हो ना, तो वी कैन ऑर्गेनाइज दिस काइंड ऑफ स्मॉल सेशंस। जरूर जरूर जरूर। आई गेस और किसी ने एक सवाल पूछा है, आई गेस आई डोंट नो। Yes, so Priya is asking that she is preparing for UPSC right now, and she wants to learn some extra skills that can help her in the journey of social and administrative work. So please suggest. आई एम नॉट श्योर, बट मेरी जो बात हो रही है, मतलब देयर आर सर्टेन गवर्नमेंट जहाँ पे हमारी बात हो रही है कुछ काम को लेकर के। सो आई सी कि उनका क्लाइमेट फाइनेंस के ऊपर काफी इंटरेस्ट है, मतलब उनको काफी काम करना पड़ता है उसमें, क्योंकि क्लाइमेट के ऊपर जो हमारे कमिटमेंट्स है ना, उसको
पूरा करने के लिए पैसे की जरूरत है. सो दैट डिस्कशन ऑन कितना पैसा किस इंटरेस्ट रेट पे किस काम को करने के लिए मिलेगा, कहाँ से मिलेगा. सो आई थिंक अगर आपको सच में जानना है तो आप क्लाइमेट के ऊपर पढ़ सकते हैं, आप क्लाइमेट फाइनेंसिंग के ऊपर पढ़ सकते हैं, बॉन्ड्स के ऊपर पढ़ सकते हैं, क्लाइमेट बॉन्ड्स करके होता है उसके ऊपर पढ़ सकते हैं. मे बी आई कैन ऑल्सो लुक into this and send you some more suggestions कि और क्या ऐसे टॉपिक्स है जिसको पढ़ना आपके लिए बेनिफिशियल होगा. मुझे भी ये लगता है कि खास करके जो हमारे स्टूडेंट्स है एसआरसी के, जो अलग अलग सेंटर्स में स्टूडेंट्स है जो सीयूटी और बाकी कोर्सेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जैसे नेहा मैम ने बताया कि इन कमिंग फ्यूचर हाउ थिंग्स ऑल्सो आर गोइंग टू बी मोर प्रोफेशनल. चाहे आप इन्वायरमेंट की बात करें, चाहे क्लाइमेट की बात करें, तो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे जो स्टूडेंट्स है व्हेन दे गो फॉर सम कोर्सेज इवन विद इन सोशल साइंसेस और ऑल्सो इन साइंसेस, तो इस तरह के कोर्सेज को आप चूज करें जो थोड़ा प्रोफेशनल हो. आई मीन सिंपली गोइंग फॉर प्लेन बीए, प्लेन बीएससी और प्लेन बीकॉम बहुत ज्यादा हमें मदद नहीं करेगा. तो जब आप इस तरह के कोर्सेज को अप्लाई, जब आप कर रहे हैं इस तरह की यूनिवर्सिटी को अप्लाई, और यदि आपके पास मौका है कि आप एक नहीं 3 कोर्सेज को अप्लाई कर रहे हैं, तो कोशिश कीजिए कि तीनों ही एक तरह के जो है प्रोफेशनल कोर्सेज हो. सो यस, एंड मैं बहुत दिल से शुक्रिया कहना चाहूँगा नेहा जी का. उन्होंने वक्त निकाला और अपनी जर्नी साथ साथ अपना जो काम का अनुभव और एक सुंदर प्रेजेंटेशन उन्होंने हमारे स्टूडेंट्स के लिए किया. और अनुप्रभा का भी जो बहुत सुंदर तरीके से इस पूरे सेशन को जिन्होंने कोऑर्डिनेट किया. नाउ आई वंस अगेन हैंड ओवर टू अनुप्रभा. यस अनुप्रभा, प्लीज गो अहेड. Thank you, sir. Thank you so much for your address. And again, thank you so much, ma'am, for your time. काफ़ी insightful session रहा even मेरे लिए and सब participants के लिए. And thank you so much for Surat sir and Rahul Dada for coordinating and organizing this session for our students. And once again, I would like to again thank all of the students to participate and listen actively to ma'am's session. हम मैम ने आज जो पीपीटी प्रेजेंट की थी वो हम आपके साथ शेयर करेंगे ताकि आप और अच्छे से डिटेल में सब कुछ पढ़ पाए. और अगर आपको फर्दर कोई क्वेश्चंस है तो आप भी वो भी कन्वे कर सकते हैं ताकि हम मैम से पूछ के आपको वापस कन्वे करें. और मैम को स्टडी मटेरियल भी भेजेंगी ताकि आपको और अच्छे से इनसाइट्स मिले ऑफ दिस स्पेसिफिक टॉपिक. And with that, I would like to conclude today's session. Thank you so much, everyone, again for attending, and have a good evening ahead. Thank you, everyone, and thank you so much for being such a nice student, because I was expecting some very smart questions which I would not be able to handle. But thank you so much for being so nice, and I really look forward कि आप लोगों से दोबारा मुलाकात हो, बात हो. और मैंने अपने प्रेजेंटेशन में अपना ईमेल आईडी भी दिया है, जस्ट इन केस आपको लगे कि कुछ लिखने का मन है, कुछ जानने का मन है, तो प्लीज फील फ्री टू राइट टू मी. थैंक यू एवरीवन. थैंक यू राहुल. थैंक यू. Thank you Nihari. Thank you very much. Thank you everyone. Thank you. Bye. Good night. Take Good care. night. Bye. Bye. Good night.